કઈ એવી માહિતી છે આપના સુધી પહોંચાડી શકે? દર્શક મિત્રો, જોવા જઈએ તો હવે જે રીતે ભારત પ્રગતિ કરી રહ્યું છે અને સારી રીતે પ્રગતિ કરી રહ્યું છે, ત્યારે ઇંગ્લેન્ડમાં બર્મિંગ્ટનમાં 28 જુલાઈથી કોમનવેલ્થ ગેમ્સ શરૂ થઈ રહી છે અને ભારતમાંથી 322 ખેલાડીઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે. એટલે કે દર્શક મિત્રો, ભારતમાંથી 322 વ્યક્તિઓ ભારતનો ઝંડો હાથમાં લઈને ત્યાં જશે અને ભારતની આગેવાની કરશે, ત્યાં આગળ ભારતનું નામ રોશન કરશે અને સાથે સાથે ભારતની ઘણી બધી વાતોની ત્યાં ઉજાગરતા જોવા મળશે. દર્શક મિત્રો, જોઈએ તો લાગી રહ્યું છે કે આ વખતે કંઈક નવું સારું થશે. એનું કારણ છે કે ખેલાડીઓમાં પણ એટલો ઉત્સાહ છે અને સાથે સાથે જોવા જઈએ તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ ખૂબ સારો ઉત્સાહ દાખ્યો છે. ખેલાડીઓની સાથે સીધી જ વાતચીત કરી અને દર્શક મિત્રો એમને જણાવ્યું છે કે આપ સારું પ્રદર્શન કરો, સારી કામગીરી કરો, એના માટે સારી શુભેચ્છાઓ પણ અહીં આગળ આપવામાં આવી છે. કોમનવેલ્થ ગેમમાં ભાગ લઈ રહેલા અમારા દરેક ખેલાડીઓને મારી શુભેચ્છાઓ એવા શબ્દો વાપર્યા છે. મને ખાતરી છે કે તેઓ આપણા દેશને ખૂબ જ ગર્વ કરાવશે. ખેલાડીઓને ચમકાવવાની અદ્ભુત તક આપવા ઉપરાંત કોમનવેલ્થ ગેમ જેવી ઘટનાઓના રાષ્ટ્ર વચ્ચેની એકતા અને ભાઈચારાની ભાવના લાવે છે. રમતગમત દરમિયાન અવારનવાર આવનારા દિવસોમાં આપણે રમતગમત અને ખેલદિલી બંનેની ઉજવણીના સાક્ષી બનીશું એવો સંદેશ જ્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આપ્યો છે, ત્યારે ખેલાડીઓમાં પણ જુસ્સો અને જોમ જોવા મળી રહ્યો છે. ભારત જઈ રહ્યું છે ઇંગ્લેન્ડ અને ત્યાં આગળ બર્મિંગહામમાં કોમનવેલ્થ ગેમ 2022ની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે. કહી શકાય છે કે સારી રીતે શરૂઆત થશે. ભારતના જે ખેલાડીઓ છે એ ત્યાં આગળ જઈને સારું પ્રદર્શન કરશે, સાથે સાથે ભારતનું નામ ઉજ્જવળ થાય એવી પણ આશા પ્રધાનમંત્રીએ રાખી છે. ત્યારે દર્શક મિત્રો, આપણે કહી શકીએ કે જ્યારે એક દેશ હોય છે એ માત્ર એના આર્થિક વિકાસથી નહીં પણ ઘણી બધી વાતોથી ઓળખાતો હોય છે. દર વખત જેમ કોમનવેલ્થ ગેમની અંદર જે રીતે ખેલાડીઓએ પ્રદર્શન કર્યા છે, એ રીતે કહી શકાય કે આ વખતે પણ ભારત દેશના જે ખેલાડીઓ છે એ કોમનવેલ્થ ગેમની અંદર સારું પ્રદર્શન કરશે. સાથે સાથે એવું એક જુસ્સો અને જોમ લઈને અહીંયાથી જઈ રહ્યા છે કે જેને કહી શકાય છે કે ખૂબ સારી રીતે તૈયારીઓ પણ બતાવી છે. કોમનવેલ્થ ગેમ 2022માં ભારતીય હોકી ટીમનું પણ એલાન કરવામાં આવ્યું છે અને ભારતીય હોકી ટીમમાંથી પણ મનપ્રીત સિંહ જે છે એમને કેપ્ટનશીપ સોંપવામાં આવી છે અને હરમનપ્રીત સિંહ છે એમને વાઇસ કેપ્ટન તરીકે પણ અહીંયા આગળ જોડવામાં આવ્યા છે. કોમનવેલ્થ ગેમ જ્યારે 28 જુલાઈથી શરૂ થઈ રહી છે, ત્યારે ભારતમાં કહી શકાય કે સારી રીતે તૈયારીઓ થઈ ગઈ છે. આટલા મોટા પ્રમાણમાં જ્યારે ખેલાડીઓ ભારતમાંથી જઈ રહ્યા હોય ત્યારે કહી શકાય કે ખૂબ સારી એક શરૂઆત છે અને શરૂઆતના ભાગરૂપે એવું પણ કહી શકાય છે કે જ્યારે ખેલાડીઓમાં જુસ્સો પણ ખૂબ સારી રીતે જોવા મળ્યો છે. 322 ખેલાડીઓ, અલગ અલગ ખેલમાં રોકાયેલા ખેલાડીઓ જ્યારે ભારતનું કહી શકાય કે નામ રોશન કરવા જઈ રહ્યા છે, ત્યારે ચોક્કસ કહી શકાય કે ખૂબ સારી કામગીરી નીવડશે અને ખૂબ સારું પરિણામ લઈને આવશે. અને આજનો આ વિષય જે છે અમે લઈને આગળ ચાલી રહ્યા છીએ. આપ જોયું છે કે ભારતે હંમેશા દરેક એક દિશામાં પોતાનું એક નામ સરસ કર્યું છે. ભારતે હંમેશા એવો પ્રયત્ન કર્યો છે કે વિશ્વની અંદર સારી એ આપણી નામના થાય અને એની સાથે એ પણ કહી શકાય કે ભારતે એવું પણ સ્વપ્ન જોયું છે અને ઘણા બધા ખેલાડીઓએ ભારતનું નામ પણ રોશન કરેલું છે. કોમનવેલ્થ ગેમની અંદર આપણે મેડલ્સ પણ લાવેલા છીએ. એટલે કે ભારતે ખૂબ સારી કામગીરી કરેલી છે. દર્શક મિત્રો, જોવા જઈએ તો ભારત એક એવો સરસ દેશ છે કે જેની અંદર સારી તકો પણ મળતી હોય છે. ત્યારે ચર્ચાને આગળ વધારતા મારી સાથે પેનલમાં બે મહાનુભાવો જોડાઈ ગયા છે. જે બંને મહાનુભાવો, એક જે કહી શકાય લલ્લનસિંહજી જે પૂર્વ રમતવીર છે અને
રૂપેશભાઈ મકવાણા છે જેમને રનિंगની અંદર खूब सारी नामना करी है। स्वागत है आप दोनों का हमारे केटीवी न्यूज़ गुजराती के माध्यम से। सबसे पहला प्रश्न ललन सिंह जी आपको कि जिस तरह से भारत इस बार कॉमनवेल्थ गेम में 322 खिलाड़ियों को भेज रहा है और जिस तरह से नरेंद्र मोदी भारत के वड़ा प्रधान ने उनको संबोधन किया है, क्या कहेंगे उसके बारे में? मैं सबसे तो पहले ये मान के चलता हूं कि जो मोदी साहब हैं वो इस देश में नहीं पूरे विश्व में ऐसे ऐसे उदाहरण और काम कर रहे हैं जिससे हमारी भारत की छवि बहुत सशक्त और मजबूत बन रही है। अब आप देख लीजिए कि आपने जो बोला राष्ट्रमंडलीय गेम, इसका शुरुआत मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि 11 देशों के द्वारा, और उस समय ये मान के चलते थे कि जितने भी इंग्लैंड के गुलाम या उनके साम्राज्य के अंदर रहने वाले देश हैं उनका ही इस आयोजन में शामिल होना होता था। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अभी आपने जैसा बताया कि हमारे मोदी साहब ने कॉमनवेल्थ जो 11 दिन का बर्मिंघम में इंग्लैंड के अंदर होने वाला है 28 जुलाई से, उसमें जो प्लेयर शामिल होने जा रहे हैं उनको बहुत चर्चा करके, बातचीत करके उनको इतना मोटिवेशन किया है, हर प्लेयरों से उनको पर्सनल अपनी बातचीत करके उनको खास करके ये बताया है कि आपने अपने झंडे, अपने राष्ट्रगान को ऊंचा करना है और आप अपने तरीके से बहुत एक्सपर्ट हो, आप अपना बेहतर गेम का वहां अंजाम देना। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि 2010 से आपका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा होगा, इसमें कोई शक नहीं। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो ये राष्ट्रमंडलीय गेम है, ये पहले इसको बोलते थे कि ये ब्रिटिश एम्पायर कॉमनवेल्थ गेम, लेकिन लोगों ने आपत्ति किया, देश ने आपत्ति किया कि साहब इससे हमारी गुलामी झलकती है। बात भी सही था। और उसके बाद ये जो 1930 से शुरू होने वाला राष्ट्रमंडलीय गेम जो एम्पायर ऑफ इंग्लैंड के तौर पे माना जाता था, उसमें नाम में चेंजिंग किया गया। और सबसे बड़ी बात, भारत जब 1934 में इसमें ज्वाइन किया तो हमारा एक खिलाड़ी रशाद अनवर जिसने सबसे पहले ब्रॉन्ज लिया, और 1958 में हमारे मशहूर अब स्वर्गीय हो चुके हैं मिल्खा सिंह, उन्होंने 400 मीटर के अंदर गोल्ड मेडल लिया। कहने का मतलब भारत का इतिहास जो है बहुत जबरदस्त रहा है। और खास करके निशानेबाज में जिसमें जसपाल राणा जैसे प्लेयर जिन्होंने अपने लिए केवल 15 मेडल प्राप्त किए राष्ट्रमंडलीय गेम में, और हमारे निशानेबाज का तो बहुत धाकड़ हालात हर कॉमनवेल्थ गेम में रहा है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि 2010 में हमारी कुछ प्रदर्शन कमजोर जरूर थी, लेकिन इस बार जो हमारे खिलाड़ी जा रहे हैं और वो इस तरह से मोटिवेट हैं और उनकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत हाईली स्टैंडर्ड की है। तो मैं क्योंकि एनआईएस फुटबॉल का कोच रहा हूं, मैं मानता हूं कि 1982 के बाद हमारे यहाँ जो एक बार कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उसका पूरा याद करके इस बार का जो बर्मिंघम में इंग्लैंड के अंदर जो हमारे प्लेयर हैं वो जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे, और चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, ब्रॉन्ज हो, उसकी वो झड़ी लगा देंगे। ये मैं आपके माध्यम से उम्मीद करता हूं। ललन सिंह जी, बहुत अच्छा आपने निवेदन दिया है। जो भारत देश है सदियों से उसका ऐसा चलता आया है कि भारत देश ने कहीं भी हर एक राष्ट्र के अंदर उसने अपना झंडा गाड़ा हुआ है। आपने जिस तरह से बहुत अच्छी तरह से आपने बताया कि जो हमारे एथलीट्स हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन वहाँ पे किया हुआ है। साथ साथ ये भी आपने बताया है कि भारत ने ब्रॉन्ज से लेके गोल्ड तक मेडल भी हासिल किए हुए। एक एथलीट्स के हिसाब से आप भी फुटबॉल प्लेयर रहे हुए और आपने भी फ्लूएड फुटबॉल के अंदर कैप्टनशिप भी की हुई और आप कोच भी रहे हो, तो आपने बहुत सारी अच्छी एक एथलेट्स आपके अंदर है। आप बताइए कि किस तरह का जज्बा होता है, किस तरह का जुनून होता है जब एक एथलीट्स अपने पूरे देश का एक झंडा लेके किसी दूसरे देश में जाता है और ऐसी कॉमनवेल्थ जैसी जो गेम है उसके अंदर देश को लेके आगे चलता है। मैं ये बताना चाहूंगा संपादक महोदय कि जो कॉमनवेल्थ गेम है उसकी एक अहमियत है पूरी दुनिया में। ये भी बात पक्की है कि जो ओलंपिक में खेलने वाले, पार्टिसिपेट करने वाले देश हैं वही इसमें भाग लेते हैं। वो बात ठीक है कि पुराने जमाने से जो हमारा इतिहास रहा है कॉमनवेल्थ गेम का, इसमें वही देश पहले आते थे और अभी तक हालांकि बहुत सी चेंजिंग हो गई है।
जो इंग्लैंड के साम्राज्य के अंदर में कभी न कभी गुलाम रहे थे। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। भारत जैसे कई देश हैं जो किसी भी दुनिया के देश को टक्कर देने में माहिर हैं। जैसे इस बार जो हमारे प्लेयर जा रहे हैं नीरज चोपड़ा जैसे जी। तो ये वो खिलाड़ी हैं जो कि कुछ भी और किसी तरह का रिकॉर्ड स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि आपने कहा, मैं 1982 का जब एशियन गेम हो रहा था, मैं उसी समय NIS कोच पटियाला में कर रहा था। मुझे याद है कि हमारे भारत से उम्मीदें थी कि पता नहीं कैसे ये एशियन गेम करेंगे, लेकिन जो वो एशियन गेम हुई थी वो बड़ा धमाकेदार हुई थी। मैं ये भी कह रहा हूं कि 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम होगा वो अब ऑस्ट्रेलिया में होगा, लेकिन हो सकता है कि उसके बाद फिर से एक बार जो कॉमनवेल्थ गेम हमारे इंडिया में होगा। और मैं एक चीज है, वो आपने प्रश्न पूछा है, जो स्पोर्ट्स है उससे तो हमारे देश के जो युवा हैं उनमें ऊर्जा आएगी। हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ने की स्थिति में होते हैं। स्पोर्ट्स एक ऐसा चीज है जो देश को मजबूत बनाता है, मेंटल और फिजिकल दोनों उसकी काबिलियत डेवलप करता है। और मैं आपको एक चीज टेक्निकल बताना चाहूंगा, जो लोग भी स्पोर्ट्स में आते हैं वो 5 चीजों पे आधारित होते हैं। पहला इंडोरेंस, जिसमें लंबे ताकत की जरूरत होती है, फिर स्पीड, उसमें तेजी आती है, फिर एजिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, और एक लास्ट उसमें हम मान के चलते हैं कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, उसमें मनोभावना, जिससे उस हर खिलाड़ी के अंदर एक भावना होती है कि हम अपने देश के लिए और खास करके कॉमनवेल्थ या ओलंपिक या पैरालंपिक में जब जाते हैं तो ये मान के चलते हैं कि हमने जो करना है वो हमारे देश के राष्ट्रगान और झंडे को जब उस पर चढ़ेंगे हम अपने गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर के साथ, तो हमारे देश की छवि बहुत मजबूत होगी। तो यही बात हमारे प्रधानमंत्री साहब ने आज पहली बार ऐसी देखी जा रही है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री हर खिलाड़ी से, चाहे ओलंपिक से आए या जा रहे हो या पैरा में जा रहे हो या वापस आ रहे हो, हर छोटे और बड़े स्तर के खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतर उनकी मनोभावना को तसल्ली के साथ बातचीत करके उनके मोटिवेशन करते हैं। और जब एक प्रधानमंत्री इस तरह की ताकत किसी खिलाड़ी को देता है तो मान के चलिए कि इस बार 2010 का दुगना हमारे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। और जब इस बार 11 दिन के लिए बर्मिंघम में इंग्लैंड के अंदर जब वो अपना जलवा दिखाएंगे, और इस बार एक और अच्छी बात, पहला बार 98 के बाद क्रिकेट को फिर से वहां शुरुआत हो रहा है और हमारी लड़कियां जो हैं उसमें कुछ न कुछ ऐसा चीज दिखाएंगी जो दुनिया को समझ में आएगा कि हमारी महिलाएं, और सबसे ज्यादा इस बार कॉमनवेल्थ गेम में महिलाओं का इवेंट ज्यादा है, ये भी बात एक बहुत खुशी की है। और हमारे जो प्लेयर जा रहे हैं उनके अंदर जो उनका लीडर है वो भी एक बड़ा शानदार मुक्केबाज का पुराना खिलाड़ी रहे हुए हैं, और उनके लीडरशिप में जो ये लोग हैं वो एक बेहतर आपको इंडोरेंस, स्पीड, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और अपने मनोभाव के साथ उम्मीद करता हूं कि पूरे देश का कॉमनवेल्थ गेम में नाम को और ऊंचा करेंगे। और जब वापस आएंगे तो फिर प्रधानमंत्री साहब से फिर मिलेंगे और प्रधानमंत्री साहब के इस मनोभावना को जो उन्होंने मोटिवेट किया है उसको वो याद करेंगे। क्योंकि जब प्रधानमंत्री कोई चीज को तसल्ली देते हैं तो हमारा जो हर खिलाड़ी है वहां पे जाके कुछ न कुछ करने के लिए एकदम पूरी जज्बा के साथ अपने काम को पूरा करेगा, इसमें कोई शक नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। बहुत अच्छी तरह से आपने बताया। 2 चीज़ें ऐसी होती है जो इंसान के अंदर एक जज्बा खड़ा करती है, इंसान को कुछ अच्छा करने का एक मौका देती है। एक है सैनिक, जो बॉर्डर पे लड़ता हुआ एक सैनिक है, उसको ये सद्भाव मिलता है कि वो देश के लिए कुछ कर सके। और दूसरे जो होते हैं वो एथलीट्स होते हैं, जो पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं, पूरे वर्ल्ड से जो प्लेयर्स आते हैं उनके साथ खेलना है, उनके साथ खेल के हमारे देश का नाम रोशन करना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा बताया कि जब हमारी नेशनल एंथम जब बजती है, एक राष्ट्रगान जब हमारा बजता है तो एक गर्व अलग ही रहता है, एक अलग सुकून मिलता है, एक भाव जगता है कि आज भारत कहीं दिख रहा है। दूसरी एक बात है कि जो एक सैनिक है जो बॉर्डर पे करता है वही ये एथलीट्स लोग यहाँ पे करते हैं। एक सैनिक अपनी जान दे देता है अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए। एक सैनिक है वो -50 हो या
45 प्लस हो, उसमें रहता है, क्योंकि वो अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहता है। वो किसी भी परिस्थिति में अपने देश को, अपने राष्ट्र को वफादार रहना चाहता है। और यही चीज़ ललन सिंह जी मैंने देखी है एक एथलीट्स में। जो एथलीट्स रहता है वो मरते दम तक, बहुत सारे एथलीट्स ऐसे देखे हैं कि अपना लास्ट टेम्पटेशन वहाँ पर ले जाते हैं और अपने देश को आगे लाने का प्रयत्न करते। एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है, जिसको लेके हर एक को एक आशा रहती है, हर एक के आंखों में ख्वाब रहता है कि जिस ख्वाब को लेके चलते। एक एथलीट्स को, ललन सिंह जी, आप क्या बताएंगे एक ऐसे एथलीट्स को कि जो एक जुनून से, जुस्से से भरा और अपने देश के लिए वहां जा रहा है? आपने बहुत जबरदस्त बात को रखा, तो मैं इस पे एक चीज बताना चाहता हूं कि फौजी और ये स्पोर्ट्समैन, ये देश के एक तरह के ध्वज के वाहक हैं। आपने सही कहा, 50 हो, माइनस हो या गर्मी का डेजर्ट हो, उनके लिए रण कच्छ हो या आपको हाई एल्टीट्यूड LAC हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से जो खिलाड़ी हैं, अगर याद किया जाए तो जितने भी लंबी दूरियों के जो धावक हैं, उसमें सबसे ज्यादा, चाहे वो श्री राम सिंह हो, शिवनाथ सिंह हो या मिल्खा सिंह जी हो, ये लोग, या हरिश्चंद्र हो, अर्धसैनिक बल के पुराने राजस्थान के, ये सभी इंडोरेंस के साथ फौज में अपनी काबिलियत को बढ़ाकर और देश का नाम ऊंचा किया। ये जो मिल्खा सिंह जी थे, इनके बारे में जो कहानियां बताई जाती हैं कि ये खाना बनाने के बाद 11 बजे पूरी बर्तनों को रख के और 1 बजे से लेके 3 बजे तक ये रोलर को लेके पीछे अपनी इंडोरेंस को बढ़ा रहे थे। और एक आर्मी के सूबेदार वो अचानक उठा तो उसने देखा कि एक लड़का वो रोलर पीछे बांध के और चारों तरफ उस ग्राउंड के अंदर अपने स्पीड में चल रहा है। वो नजदीक जब गया तो देखा कि मिल्खा सिंह है। वो मिल्खा सिंह से पूछा, भाई तुम क्या कर रहे हो? उसने बताया, साहब मुझे समय मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए मैं कुछ स्पोर्ट्समैन बनना चाहता हूं और ये मेरी यही चाहत है कि मैं कुछ करूं और देश के लिए भी कुछ करूं। और वही मिल्खा सिंह दुनिया के लिए एक अपना नाम छोड़ के गए हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं, वो प्लेयर थे जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी तोड़ा था, लेकिन बदकिस्मती समझिए या जो कुछ सेकंडों के भाग में वो 4th पोजीशन हो गए थे। लेकिन कॉमनवेल्थ में 1958 में वही गोल्ड मेडलिस्ट थे और उन्होंने भारत का नाम इतना जबरदस्त उजागर किया था। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 322 का जो ये सदस्य जा रहे हैं, इसमें ऐसे ऐसे प्लेयर हैं, चाहे वो मीरा हो, चाहे नीरज चोपड़ा हो, रिकॉर्ड को ये तोड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं। और ये जो घोषणा 4 दिन पहले कॉमनवेल्थ गेम के खिलाड़ियों की हुई है, ये सब आले दर्जे के प्लेयर हैं। मैंने कहा ना, इंडोरेंस इनकी बहुत अच्छी है, स्पीड बहुत अच्छी है, एजिलिटी भी बहुत अच्छी है, और साइकोलॉजिस्ट तो हमारे प्रधानमंत्री साहब ही हो गए हैं। उनके जो लोगों को मोटिवेशन मिला है हमारे देश के प्रधानमंत्री से, वो तो दुनिया में शायद ही किसी को मिलता होगा। देखिए ना, आपके माध्यम से बोल रहा हूं, हिंदुस्तान ने आज नया इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री मोदी साहब ने हमारे पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनाया, जो पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और राष्ट्रीय चुनाव में लगातार इनकी बधाइयां दी जा रही हैं। ये रणनीति का क्या जवाब है कि एक महिला जो ग्रामीण परिवेश से आई, टीचर रही, मंत्री रही, गवर्नर रही, और आज भारत की प्रथम महिला और डिफेंस के भी वो सर्वोच्च कमांडर बन गई। क्योंकि मैं फौजी भी हूं, तो मैं ये बोलता हूं आपकी बातों को और दम के साथ कि ये फौजी और ये खिलाड़ी ये देश के मतलब निशान को उनको ऊपर ही ले जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। जैसा कि आज हमारी मुर्मू मैडम राष्ट्रपति के लिए एकदम जीत चुकी हैं। 24 तारीख के बाद उनका स्थापना भी उस प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय के जगह पे होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि कितनी बड़ी हमारे देश में एक परिवर्तन आया है कि एक महिला जो कि ग्रामीण गांव से आती थी और आदिवासी समाज से, और उन्होंने भारत के सबसे सर्वोच्च पद पर आसीन हो रही हैं। तो ये देश में हर वक्त नया चीज हो रहा है। तो कॉमनवेल्थ गेम जो हमारा आज बातचीत का मुद्दा है, आपके माध्यम से
2010 का मैं उम्मीद करता हूं दुगने मेडल्स हमारे पास आएंगे और वो मेडल बन रहे हैं। जैसा पता चला है इंग्लैंड भारत के ही एक नौजवान वहां भी प्रधानमंत्री बनने की तैयारी में है। कमाल है भारत, जिसकी कोई भी उदाहरण दुनिया में दी जा सकती है। बहुत अच्छी तरह से आपने जो दो उदाहरण दिए हैं वो बहुत अच्छे हैं। एक दिन ऐसा था कि जब अंग्रेज हमारे ऊपर राज करते थे, 200 साल का अनुशासन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर किया हुआ है। आज वही भारत अगर वो गेम्स में जा रहा है तो भी कुछ अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, वो कोई और तरीका तो भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ये एक जज्बा है, एक जुनून है जिसको लेके हर एक जो भारतवासी, हर एक देशवासी लेके चलता है। ललन सिंह जी, छोटे से छोटा बच्चा भी मैंने देखा है कि 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, वो बच्चे के हाथ में जो झंडा रहता है वो जुनून है, वो देश का। उसको बहुत ज़्यादा पता नहीं चलती, इतना छोटा 2-3 साल का बच्चा है, उसको पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन उसको वो तो पता चलता ही है कि ये मेरे देश का झंडा है और मुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उस दिन हम कहीं भी खड़े रहते हैं और अगर हमारे राष्ट्रध्वज को देखते तो खड़े रह के हम सलाम करते हैं। जब यहाँ से हमारा पूरा जो ये दल वहाँ पे जाएगा, एक पूरा राउंड अप होता है कि वहाँ पे एक पूरा घूमना रहता है, एक राष्ट्रध्वज हमारे हाथ में रहता है, जो वहाँ पे एक बंदा रहता है कि जिसके हाथ में राष्ट्रध्वज रहता है, उसके पीछे पूरी एक टीम चलती है। ललन सिंह जी, वो जज्बा रहता है अपने देश के लिए कुछ करने का, देश के लिए। सैनिक को इसलिए मैं याद करता हूँ, मेरे लिए सैनिक एक अलग उनकी कैटेगरी अलग है। वो एक ऐसा इंसान है जो अपने घर परिवार अपना सब कुछ छोड़ के, तनख्वाह के लिए नहीं लेकिन जज्बातों से अपने देश के साथ जुड़ा है। एक ऐसा फौजी, बहुत सारे फौजी है ललन सिंह जी कि एक बार घर से जाते तो वापस वो जिंदा नहीं आते और कुछ नहीं। और मैं सलाम करता हूं ऐसी माओ को, ऐसी बहनों को। मैंने ललन सिंह जी 2 किस्से देखे हुए हैं कि एक जवान बेटा जब घर पे उसकी लाश आती है तो मीडिया उनके साथ जाके इंटरव्यू करने का ट्राई करती है, तो मीडिया को वो बुजुर्ग बताते, बहुत बुजुर्ग थे माँ बाप, कि हमारा एक बेटा तो हमने खो दिया है लेकिन हमारा दूसरा बेटा भी है और हमारे दूसरे बेटों को भी हम फौज में भेजेंगे। उसकी वाइफ को पूछा गया कि आपके हस्बैंड तो शहीद हो गए, उन्होंने बोला इनका भी एक बेटा है, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरा ये बेटा भी फौज में जाए। ये जज्बात है, ये जुनून है। ये ललन सिंह जी जो समझ पाएगा वही समझ पाएगा। ये एकदम इनर सेंस है, वो किसी के मुंह से सुनना या बोलना वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन वही जज्बा जब हम ऐसे एथलीट्स में देखते हैं, वही जज्बा हम ऐसे रमतवीरों में देखते हैं, तब हमें जाके लगता है कि भारत एक ऐसा देश है कि जिस देश में अभी जो जज्बा है वो अभी जिंदा है। क्या कहेंगे उसके बारे में? आपने इतनी जबरदस्त बात कही। ये कई टीवी न्यूज में जो हम बहस कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसी बातें आपने बता दी कि ये देश के हर युवा, हमारा देश ही युवा हो गया है जी। इसमें कोई शक नहीं। इसमें एक जबरदस्त जागरूकता की जरूरत है जो हो रही है। मैं आपको आपके बातों को और दम के साथ बोलना चाहूंगा कि अभी 2 दिन पहले एक कैप्टन आनंद कुमार बिहार के खगड़िया का, जो एलओसी के ऊपर ग्रेनेड ब्लास्ट से शहादत उनकी हो गई, और उसके साथ एक उत्तर प्रदेश के नायक सूबेदार भगवान सिंह, उनकी भी हुई। मैं बताऊं, मैंने यहाँ पे कई 1-2 चैनलों में भी बात किया। उनके माता पिता तो दुखी जरूर होते हैं, जिसको जन्म दिया वो उनके कंधे पे अगर उसकी लास्ट राइट हो, लेकिन उनके परिवार ने बड़े गर्व से बोला कि मेरा बेटा गया भी तो ऐसा कर गया जो इलाके लोगों के अंदर एक जज्बा का मतलब संचार हो गया। पूरी बिहार के अंदर लोग हमें पूछने के लिए आ रहे हैं कि भैया आपका बेटा शहादत हुआ है, हम आपके साथ हैं। ये साधारण चीज नहीं है। और आपने जो कहा ना कि अपनी हस्बैंड के बाद अपने बेटे को भी उसी एलओसी और एलएसी पे भेजने के लिए तैयारी में रहती है, ये एक जज्बा है। और उसी तरह से जो खिलाड़ी हैं जब जीतते हैं तो झंडे लेकर अपने देश के पूरे उस स्टेडियम में घूमते हैं
और चाहे वो कपिल देव साहब के जमाने में हो या हमारे नीरज चोपड़ा के जमाने में हो या मीरा के जमाने में हो, लेकिन जब भी हमारा कोई गोल्ड मेडल की तरफ जाता है, ब्रॉन्ज जाता है या सिल्वर में भी जाता है, तो पूरी देश की सम्मान बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात कि कॉमनवेल्थ गेम, जैसा आपने बताया कि एक जमाना था कि उनके इंग्लैंड के साम्राज्य के अंदर रहने वाले देश उसमें शामिल 11 हुए थे, लेकिन अब वो बात नहीं रही। हर देश अपने आत्मसम्मान के साथ वहां अपनी जोरदार धाक को, अपने जज्बा को प्रदर्शित करता है, और यही भारत की काबिलियत है। हमारे पास आबादी है, हमारे लोगों में एक ताकत है, और मैंने कहा जब उसको एक अच्छा कोच, अच्छा ट्रेनर और अच्छी सुख सुविधाओं के साथ उसकी ट्रेनिंग हो जाती है, तो दुनिया के अंदर अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ओलंपिक में भी भारत की धाक और जबरदस्त रहेगी, जो अब शुरू हो चुकी है। और यही कारण है कि 11 दिन का जो कॉमनवेल्थ गेम है उसके अंदर हमारे जो खिलाड़ी जा रहे हैं, जिसकी घोषणा हो चुकी है, वो सब अपनी पूरी तैयारी के साथ, चाहे वो कुश्ती में हो, निशानेबाज में हो या एथलीट में हो, लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ करके और कई ऐसे रिकॉर्ड ब्रेक करने का उन्होंने सोच भी लिया है, और ये होगा। हमारे देश में 1982 में एशियन गेम हुआ था, उसमें भी हमने बेहतर आयोजन किया था। आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस मोदी साहब के जमाने में ओलंपिक का भी आयोजन हो, क्योंकि भारत में इतनी ताकत है। जो पटियाला है, जो बेंगलोर है, भारत के कई जगहों में हमारे NIS के जो सेंटर हैं वो इसकी तैयारी भी अपनी कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में ओलंपिक की भी संभावना बन सकती है, और जिसकी उम्मीद पूरे देशवासी जरूर करते हैं, और युवाओं के बीच में इसकी उम्मीद तो रहना चाहिए, क्योंकि ओलंपिक एक ऐसा है जिससे देश में एनर्जी, ताकत और कुछ करने का मादा, जो फौजी पत्रकार को भी मैं देखता हूं कि वो रात हो या दिन हो, अगर मूसेवाला की हत्या हुई, उसमें बॉर्डर के नजदीक इनकाउंटर हुआ, तो वहां भी एक पत्रकार को पैर में गोली लग गई, निजी चैनल का। लेकिन इसका मतलब है कि जहां पुलिस है, जहां आर्मड फोर्सेस गई, वहां पत्रकार भी गया। वैसे ही प्लेयर भी अपने देश का नाम को ऊंचा करने के लिए कॉमनवेल्थ, पैरा और ओलंपिक पूरी तैयारी करके जा रहा है, और इसका रिजल्ट जब 11 दिन के बाद खत्म होंगे तो फिर कहीं मौका मिला तो आपसे बात करेंगे। 2010 से बहुत ही बेहतर परिणाम होगा, और इसका एक सबसे बड़ा कारण हमारे यहाँ ट्रेनिंग कौशल को बढ़ाने का तरीका, फॉरेन में भी जहां जरूरत है नीड टू नो बेसिस पे वहां खिलाड़ियों को भेजा गया है, और उनकी पूरी तैयारी के साथ, उनके बैलेंसेबल डाइट के साथ ये उम्मीद की जा रही है कि रिजल्ट अच्छा होगा, और इसी उम्मीद में हम इंतजार कर रहे हैं 28 को और उसके बाद 8 अगस्त तक का रिजल्ट का। हाँ जी, बहुत अच्छा बता रहे हैं। हार या जीत वो तो खेलने वाले हर एक खिलाड़ी के ऊपर रहता है। ललन सिंह जी, हर एक देश का जो खिलाड़ी होता है वो अपने आप में एक जज्बा, एक जुनून लेके आता है। मुझे बात करनी है भारत के उन खिलाड़ियों की। ललन सिंह जी, ये गर्व है मुझे कि आज मैं भारतीय हूँ, ये गर्व है मुझे कि मैं एक ऐसे देश का वासी हूँ कि जिस देश के लोगों ने, ललन सिंह जी, अब तो हम बहुत एडवांस हो गए। जो पहले की ज़माने की अगर बात की जाए तो हमारे जो खिलाड़ी हुआ करते थे ना, वो खेतों में काम किया करते थे। ये बहुत एकदम मिडिल क्लास से आया करते थे, बीच में काम से वो वक्त निकाल के वो प्रैक्टिस किया करते थे, और वो लोग जब गोल्ड मेडल लाते थे ना ललन सिंह जी, वो बहुत बड़ी बात है। एक चीज़ ऐसी होती है कि एक जज्बा रहता है। मुझे आपने जैसे बताया कि मिल्खा सिंह जी जब अपने पीछे वो पूरा रंबल लेके वो भागते थे, और उनको जो सूबेदार जी ने देख लिया, एक जज्बा रहता है। किसी ने बताया नहीं। हमारे जो खिलाड़ी रहता है, जो प्लेयर्स रहते हैं, जो एथलीट्स रहते हैं, उनको कोई बताता नहीं कि आपको ये करना है। अंदर का एक जज्बा रहता है कि मुझे यही करना है, मुझे अपने देश के लिए, देशवासियों के लिए। ललन सिंह जी, जब एक छोटा सा भी मेडल की कीमत नहीं होती, कुछ जो बोलते हैं ना कि वो प्राइसलेस होता है, लेकिन जब वो गले में पहनाया जाता है ना, तो उसका जो एक सुकून मिलता है, पूरा देश आपको देख रहा है,
देश को मिलता है, राइट। नेशनल एंथम वहां पे बज रही है। मैंने देखा है ललन सिंह जी के जितने लोग वहां हमारे भारत देश से गए, जब हमारा नेशनल एंथम बजता है ना, तब सबकी आंखों में आंसू आ जाता है, एक जज्बाती हो जाते हैं वहां पे, और एक ऐसी चीज वहां पे क्रिएट हो जाती है। हम एक मूवी भी बहुत अच्छी आई थी जिसमें बताया था कि जब एक बच्ची होती है वो जीत जाती है और वहां पे नेशनल एंथम बजता है, ललन सिंह जी हर एक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक कुछ लेना नहीं कुछ देना नहीं, लेकिन जो देश के लिए करते हैं। मैंने देखा है कि जब कोई अपने वीर जवान शहीद हो जाते हैं और उनके परिवार को जब परमवीर चक्र या वीर चक्र जब मिलता है, वो वैल्यू उसकी मनी में हम काउंट नहीं कर सकते, इट्स अ प्राइसलेस। लेकिन जब वो किसी को मिलता है, एक माँ बोलती है कि आज मैं बहुत सम्मानित हुई हूँ, एक बाप बोलता है कि मैं बहुत सम्मानित हुआ हूँ, एक बेटा, एक बेटी, एक विधवा पत्नी ऐसे बोलती है कि आज मैं सम्मानित हुई। एक ऐसे वीर के लिए कि जिस वीर ने हमें सम्मानित करने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। बहुत बड़ी बात है ये कि जिसको लेके हम बोल सकते हैं कि ये भारत देश है, सोने की चिड़िया है ये भारत देश हमारा। और जब ये ऐसा काम करते हैं तो ललन सिंह जी हमारा सर भी गर्व से ऊंचा हो जाता है। क्या कहेंगे इसके बारे में? इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी क्षेत्रफल, विभिन्न राज्यों की अपनी संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था, कहीं बिहार, कहीं गुजरात, कहीं राजस्थान, कहीं अरुणाचल और कहीं तमिलनाडु, हर तरह के समावेशी सामाजिक व्यवस्था और उसके साथ मिलकर एक भारत देश। आपने जो कहा वो बहुत सही है। अगर महावीर वीर चक्र और किसी खिलाड़ी को गोल्ड मेडल या किसी हमारी टीम को, एक जमाना था जब हमारे मेजर ध्यानचंद जो कि एकदम गांव से, उनके भाई रूप सिंह एकदम गांव से, उनके पुत्र का टाइम तो बहुत चेंज हो गया, अशोक कुमार जी का, लेकिन जब ये ओलंपिक में खेलते थे तो इनको जादूगर माना जाता था और दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष ने इनको अपने ऑफर दिया। लेकिन क्या बहादुरी थी, उन्होंने बोला हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा फौजी सब कुछ है, हम इस देश से कभी अलग नहीं हो सकते। और वो मेजर ध्यानचंद जैसे लोग, उन्होंने अपनी हॉकी का एक ऐसा उदाहरण दे दिया जो आज तक उसको, उस रिक्त स्थान को पूरा करने की किसी की ताकत नहीं। ठीक है, आपने जो कहा वो बहुत सही। खेल में हार और जीत होते रहते हैं, ऊपर और नीचे क्रमांक बनते रहते हैं, लेकिन आपने ये भी बहुत सही कहा कि जब कोई प्रथम स्थान प्राप्त करता है खेल में या एथलीट में, और जब वो गोल्ड मेडल लेता है, उसकी बहुत अहमियत नहीं होती आर्थिक रूप से, लेकिन पूरा देश टीवी के पास, पूरी देश कान और आंख को लगाकर ऐसे उम्मीद में रहता है कि आज हमारा ये प्लेयर गोल्ड मेडल जीतेगा, ये हमारे निशानेबाजी में अभी ओलंपिक में नंबर 1 बनेगा। इन्हीं सभी चीजों को सोचने से रोना भी आता है, रोना खुशी का रोना। और जब उसमें राष्ट्रगान होता है तो झंडे की जब आप बात करते हैं तो मैं एकदम सच बताता हूं, गोलियां चलती हैं और लोग पूछते हैं भाई कुछ नहीं होगा, ये गोलियां सब ऊपर से जाएंगी या बाएं दाएं से जाएंगी। पता नहीं उस समय क्या जज्बा होता है देश का। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जब इस तरह की स्थिति जवानों की होती है, वो जवान बोलते हैं सर कुछ नहीं होगा, हम तो अब आगे ही बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं, हम कोई पोजीशन नहीं लेंगे। उसी तरह से हमारे मिल्खा सिंह जैसा, भागो पीटी ऊषा अभी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नॉमिनेट हो गई। कमाल है ये देश। अब कितने अच्छे अच्छे खिलाड़ी, आर्टिस्ट, इन सबको राज्यसभा में मौका मिल रहा है। ये क्या है? एक टाइप ऑफ मोटिवेशन है जिसकी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में जरूरत बताई जाती है। और इंटॉलरेंस फौजी लोगों को ज्यादा मिलता है। एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बचपन में ही बच्चों को दे देना है। तो अब एक शुरुआत होना है स्पोर्ट्स अथॉरिटी भी इंडिया अब 12 से 18 साल के बच्चों को गांव से निकाल रही है, क्योंकि गांव के जो बच्चे होते हैं वो खास करके एथलीट के लिए बहुत अपेक्षाकृत अच्छे होते हैं। जी ललन सिंह जी, आप बहुत अच्छी तरह से बता रहे। आप चर्चा में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक में, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
ચર્ચા કો આગે બઢાતે હો। દર્શક મિત્રો, આપે જોયું એ રીતે કે લલનસિંહજી આપણી સાથે જોડાઈ ગયા હતા અને જે રીતે એમને જણાવ્યું છે, ખૂબ સારા પૂર્વ રમતવીર રહી ચૂક્યા છે અને પોતે સૈનિક પણ રહી ચૂક્યા છે, એટલે ખૂબ સારી રીતે કામગીરી કરી રહ્યા છે। રોકાઈશું એક નાનકડા વિરામ માટે, ફરીથી મળીશું। દરેક પ્રશ્નો પર રહેશે બાદ નજર। ઇતિહાસના પન્નાઓ પર રહેશે હું આપીશ જાણકારી આપના ભવિષ્યની। શું છે રાશિઓમાં બદલાવ? શું છે તમારી મૂંઝવણ કે સમસ્યાઓ? શું છે ગ્રહોની દશા? મેળવો તેનો સચોટ ઉકેલ મારી સાથે આપણું ભવિષ્ય કાર્યક્રમમાં। કેવો રહેશે આપનો આજનો દિવસ? જુઓ દરરોજ સવારે 7:30 કલાકે માત્ર ને માત્ર KTV ન્યૂઝ ગુજરાતી પર। સમસ્યા તમારી, ખબર અમારી। વિરામ પછી સ્વાગત છે તમારું। દર્શક મિત્રો, વાત કરી રહ્યા હતા કે એક જજબાતની, એક જનૂનની, કે જેને લઈને આપણે એક સારી એક કૂચ કરી શકીએ છીએ, જેને લઈને કહી શકાય કે એ સૈનિક હોય, એ રમતવીર હોય, કે જે કોઈ પણ એવો વ્યક્તિ હોય કે જેને દેશ માટે કંઈક કર્યું છે, કોઈ પણ એવો વ્યક્તિ છે કે જેને દેશ માટે જનૂન છે, અને કોઈ પણ એવો વ્યક્તિ છે કે જેને દેશ માટે કંઈક કરવું છે। દર્શક મિત્રો, તો KTV ન્યૂઝ ગુજરાતીના માધ્યમથી આજે અમે જે 322 રમતવીરો રમવા જઈ રહ્યા છે, એમને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ અને અભિનંદન આપીએ છીએ। અને હવે हमारी साथे गेस्ट पैनल में ललन सिंह जी। स्वागत है ललन सिंह जी, फिर से आपका। एक बात कर रहे थे, एक जज्बा, एक जुनून, और KTV न्यूज़ गुजराती के माध्यम से, आपके माध्यम से भी मैं बताना चाहूँगा कि हम उनको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहते हैं, उन 322 जो प्लेयर हैं उनको, कि वहाँ यहाँ से जाए, भारत का नाम रोशन करे और हमारा जज्बा वहाँ पे कायम रखे। ललन सिंह जी, जब हम बात कर रहे थे, मैं बात दो लोगों की कर रहा हूँ। एक पहले बात है एक सैनिक की और दूसरे एथलीट्स की। ललन सिंह जी, मैंने 2-3 एथलीट से बात भी की हुई है। जब हम लोग मीडिया में हैं तो हम बहुत सारे लोगों को मिलना भी रहता है, तो वो लोग जब जीत के आते हैं और उनका एक जज्बा, जो जुनून होता है, और उनकी आंखों में जो तेज होता है, जो देश के लिए कुछ किया है, और एक भावना ऐसी रहती है, जब इंटरव्यू के दौरान वो लोग, ललन सिंह जी, अपनी आंखों में से आंसू निकाल लेते हैं। वो सच आंसू होते हैं, उसमें कोई दिखावा नहीं होता है। वो लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे ऊपर जो देश ने विश्वास किया, देश ने हमारे ऊपर भरोसा किया, और उसको लेके हम वहाँ गए, हमसे जो भी बन पड़ा
वो हमने किया और आज देश का नाम रोशन कर दिया। ऐसे ही एक सैनिक रहता है। मैंने बहुत सारे सैनिक ललन सिंह जी देखे हुए जो घायल हो जाते हैं लड़ते हुए और फिर वापस आते हैं। जब उनसे मिलना होता है उनकी आंखों में भी आंसू होता है ललन सिंह जी। वो आंसू दुख के होते हैं कि मैं घायल हो गया हूँ, मैं आज वहाँ नहीं जा पा रहा हूँ, इसका मुझे दुख है। ललन सिंह जी, किसी ने हाथ गंवाया है तो किसी ने पाँव गंवाया है, किसी ने आंखें गंवाई है तो किसी ने अपने दोनों पाँव गंवाए हुए हैं। फिर भी वो जज्बा, वो जुनून वहाँ पे कायम है, फिर भी वो चीज वहाँ पे कायम है। वो सैनिक में के आंख में जब हम आंसू देखते हैं तो हमारी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि यही जज्बा अगर हर एक भारतीय देखने लग जाए, यही जज्बा हर एक इंसान देखने लग जाए तो ये भारत कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। ऐसा जज्बा हम देखते भी हैं। ललन सिंह जी, जब बहुत कम मौके आते हैं जब हम हमारे लिए नहीं देश के लिए जीते हैं, बहुत कम मौके आते हैं जब हमें मौका मिलता है कि हम देश के लिए कुछ कर पाए, बहुत कम मौके मिलते हैं जब हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है और उस प्लेटफॉर्म पे खड़े रह के हमें अपने देश को आगे ले जाना होता है। मैं उन वीर जवानों को भी सैल्यूट करता हूं केटीवी न्यूज़ गुजराती के माध्यम से, और वो जो एथलीट्स है उनको भी प्रणाम करता हूं कि जो आप जज्बा और जो आप अपना जो ये जुस्सा दिखा रहे उनको कायम रखिएगा। ये भारत देश है, ये एक ऐसा देश है कि अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है। हम उस देश में रहते हैं ललन सिंह जी, जब छोटा बच्चा भी बोलता है कि भारत माता की जय, एक जज्बा, एक जुनून रहता है। क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छी बातों को आपने के टीवी के माध्यम से बताया जी। मैं भी आपके के टीवी माध्यम से ये बताना चाहता हूँ जी। कि 322 जो भारत के खिलाड़ी और उनके अधिकारी जा रहे हैं जी। वो पूरे देश के प्रतिनिधि हैं जी। जबकि 6500 टोटल इस राष्ट्रमंडल गेम में बर्मिंघम के अंदर 11 दिन अपने जलवों को दिखाएंगे जी। लेकिन जो भारतीय जा रहे हैं उनसे तो हम केवल खेल को नहीं, अपनी देश की छवि जिसका आपने अभी बखान किया, ये जो फौजी होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का इसमें एक खिलाड़ी अविनाश जो कि फौजी रहा है, जो कारगिल में भी सेवा किया हुआ है, उससे प्रधानमंत्री मोदी साहब उसके कारगिल की अनुभवों को भी मतलब साझा किया जी। उनके मोटिवेशन में। इस बात को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि देखिए जो आप बोल रहे हैं वही बात हमारे प्रधानमंत्री साहब ने उससे, उस अविनाश एथलीट से जज्बे के तौर पे चर्चा में इस बात को उठाया कि आप सियाचिन में रहते थे और अब आप कॉमनवेल्थ गेम में भारत का जी। ललन सिंह जी, आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। एक राजकीय विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए, मनस्वी जी थापर। मनस्वी जी, स्वागत है आपका केटीवी न्यूज़ गुजराती में। मनस्वी जी, हम आज बात कर रहे उस भारत देश की, भारत देश से जाने वाले 322 उन वीरों की जो भारत के लिए जा रहे हैं, भारत का जो नेतृत्व कर रहे हैं और भारत के लिए कुछ करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे उसके बारे में? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मौका होता है एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ में, जब उनको खेलने का, अपने स्किल्स को दिखाने का मौका होता है और देश को किस तरीके से वो गोल्ड मेडल लेके आए, देश को प्राउड कराने का मौका होता है। और मुझे लगता है कि 322 जो हमारे खिलाड़ी जा रहे हैं उसमें अब तक जो जितने भी हम मेडल जीते उन सबका रिकॉर्ड हम लोग तोड़ेंगे और बहुत ज्यादा जीतेंगे। और कॉमनवेल्थ में भी मुझे ऐसा लगता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में जिस तरह हमारे देश की तैयारी है, अव्वल नंबर पे हमारा देश दिखाई देगा। जी मनस्वी जी, जब एक देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम यहाँ बहुत समय से ये चर्चा कर रहे हैं कि दो लोग ऐसे होते हैं जिनको मौका मिलता है देश के लिए कुछ करने का। एक है हमारे वीर जवान शहीद सैनिक और दूसरे होते हैं ये एथलीट। सैनिक जो होते हैं उनको मौका मिलता है कि अपने देश के लिए वो कुछ कर सकते हैं और ये एथलीट्स है, ये लोग कुछ कर सकते हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह अगर आप एक अच्छी एंकरिंग करें और मैं अच्छा राजकीय विश्लेषक करूं या अपना वकालत अच्छी तरह करूं, हर व्यक्ति जो टैक्स भरता है वो भी देश के लिए बहुत योगदान देता है। श्योर। हर व्यक्ति का योगदान हमारे देश में बहुत ज्यादा है।
राजनेता भी अगर अपना राजनीतिक देश को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा काम करे तो वो भी देश के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पे अगर देश के लिए कुछ करे तो मेरे को लगता है उससे बड़ा कोई योगदान नहीं होता। और क्योंकि हमारा सैनिक जो होता है उसका बलिदान थोड़ा ज्यादा होता है, वो परिवार से दूर रहता है, एक कड़ी ट्रेनिंग के तौर पे उनका लाइफ पूरा जीवन बिताता है वो लोग, तो उनका थोड़ा सा मैं हमेशा ज्यादा गिनूंगा। पर बाकी सब हमारे देश के जो कंट्रीब्यूशन अगर हम लगन से करें तो हमारे देश का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन हमारे देश के लिए हर व्यक्ति को देना ही चाहिए, अपने अपने वर्ग में अच्छा काम करके। जी मनस्वी जी, दूसरी एक बात ऐसे, ललन सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। मनस्वी जी जुड़े रहेंगे, हम ललन सिंह जी से भी बात करें। ललन सिंह जी, मनस्वी जी ने बताया कि हर एक इंसान रहता है जो अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट देश में करता है। इस दो कैटेगरी को मैं इसलिए मनस्वी जी आपको भी बता रहा हूँ, ललन सिंह जो को भी बता रहा हूँ कि ये दो चीज़ें ऐसी है, दो जगह ऐसी है जहाँ रह के आप वहां पे देशभक्ति दिखा सकते हो। हर एक इंसान देशभक्ति दिखाता है अपने हिसाब से, और हर एक इंसान टैक्स पेयर हो या छोटे से छोटा कोई व्यक्ति भी हो अपने देश के लिए बहुत। लेकिन ये दो जगह है ललन सिंह जी जहां अगर आप, जैसे हम देखते हैं कि अगर कोई वीर जवान शहीद भी हो जाता है तो एक गर्व के होता है। और दूसरी एक बात होती है कि अगर एक ललन सिंह जी एक एथलीट्स होता है जो अच्छी तरह से वहाँ से गोल्ड मेडल लाता है, सिल्वर लाता है, ब्रॉन्ज भी लाता है, मैं किसी को कम नहीं गिनता। ललन सिंह जी, ये एक जज्बा होता है, जुनून होता है। हर एक देश का इंसान है जिसको गोल्ड ही लेना है। सभी जो लोग यहाँ से जाते हैं ख्वाब लेके जाते हैं कि हम गोल्ड लेके ही आएंगे। कहीं मेहनत ज़्यादा होती है, कहीं मेहनत कम होती है, कहीं गोल्ड भी आता है, कहीं सिल्वर भी आता है, कहीं ब्रॉन्ज भी आता है, और कभी कभी नहीं भी आता है। लेकिन मैं सलाम उस जज्बात को करता हूं, मैं सलाम उस जो उनके जो विचार है उनको करता हूं कि वहां तक जाना ही सबसे बड़ी बात है। ललन सिंह जी, एक मंजिल होती है, मंजिल तक पहुंचना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मंजिल के रास्ते जाना, वो जो साहस है, वो जो करते, इस जज्बे को, उस जुनून को मैं सलाम करता हूं। क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, आपने जो कहा और हमारे मित्र ने जो कहा बहुत सही कहा जी, कि ये देश का हर नागरिक, हर देश के हर, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, किसी भी सेवा में हो, किसान हो, पत्रकार हो, मेडिकल में हो, व्यवसाय में हो, ये सभी देश के एसेट हैं। इनके द्वारा ही देश की छवि और देश का जज्बा जो है डेवलप होता है। लेकिन आपने जो ये भी कहा कि ये फौजी और ये खिलाड़ी अपेक्षाकृत इनकी थोड़ी हालात और सोच और इनके काम करने का जो जज्बा है वो कुछ और होता है, इसमें कोई शक नहीं। जब वो जानते हैं कि अगर हम सीमा पे हैं और सामने हमारा दुश्मन है तो हो सकता है कि हमारी शहादत हो जाए या उसको हम खत्म कर दें, लेकिन हम तब तक अपने आप में कभी भी किसी तरह से सुस्ती नहीं लाएंगे जब तक सामने वाला खत्म ना हो जाए। और इसी सोच में वो देश की सेवा में प्रयासरत रहता है। वो घर की फिर वो याद नहीं करता, वो किसी के बारे में नहीं सोचता। और मेजर शैतान सिंह जैसे आपके पुराने अधिकारी जिन्होंने एक हवलदार का लाइट मशीन गन को लेकर, उनको पता था कि मेरी अंतिम स्टेज है, मैं यहां से हिलने से भी मुझे कोई फायदा नहीं, और उन्होंने अपने जवान, अपने नीचे वालों को दाहिने और बाएं दुश्मन के लिए डिप्लॉयमेंट के लिए आदेश किया। उसी तरह से खिलाड़ी जब वो विदेश में जाएगा, चाहे वो ओलंपिक में जाए, पैरा में जाए या राष्ट्रमंडलीय खेल में जाए, वो केवल देश और देश के लिए सेकंडों में उसकी जवाबदेही होगी। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के लिए जो मिल्खा सिंह को याद किया जाए, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन उसमें वो चौथे स्थान पे रहे। मलाल उनको रहा कि मैं ओलंपिक दुनिया में इसी पोजीशन में नहीं आया, लेकिन वो हमारे लिए आज तक सरताज है। कहने का मतलब 1958 में उस शख्स ने हमारे लिए गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ में लिया, जिस समय ये माना जाता था कि अंग्रेजों के आधिपत्य वाले देश ही कॉमनवेल्थ में होते हैं। लेकिन उन्होंने दिखाया कि देखो हमारे देश में कैसे कैसे, और मेजर ध्यानचंद जैसे लोग अपने काबिलियत को दुनिया के सामने प्रकट किया। तो सब मिला जुला के
मैं आपके के टीवी माध्यम से जरूर बोलना चाहूंगा, आज देश में इसकी जरूरत है और हमारे फौजी और खिलाड़ियों के जैसे सब लोगों को अपने अपने योगदान को देना है और इसी से हमारा देश सर्वोत्तम विश्व गुरु और दुनिया में उदाहरण के तौर पे बना सकता है इस देश को, और ये बनेगा, इसमें भी कोई शक नहीं, क्योंकि हमारे जो अध्यक्ष हैं, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे खिलाड़ियों तक को मोटिवेट कर रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, ये कोई भी समझ सकता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बाजुए कातिल में है। अगर एक सैनिक रहता है, अगर एक एथलीट्स रहता है, तो वो सरफरोशी की तमन्ना लेके चलता है। ललन सिंह जी बाजुओं में जोर लेके चलता है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कातिल एक 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 चीज ऐसी होती है ललन सिंह जी, जब एक कोई छोटी छोटी बातें करता है तो हमें ऐसा लगता है कि आप जाओ, उस सैनिक के पास जाओ, उस एथलीट्स के पास जाओ और सीखो उनसे कि देशभक्ति क्या होती है। मैं केटीवी न्यूज़ गुजराती के माध्यम से बोल रहा हूं साहब कि अगर किसी को देशभक्ति सीखनी हो, अगर देशभक्ति क्या है वो देखनी हो, तो वो बॉर्डर पे चला जाए, किसी फौजी के साथ एकदम सही। दो दिन सिर्फ 2 दिन बिताए तो पता चलेगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। समय का थोड़ा अभाव है। ललन सिंह जी 1 मिनट में बताइए केटीवी न्यूज़ गुजराती के दर्शक मित्रों की कि ललन सिंह जी क्या कहेंगे इस जज्बात के बारे में। एकदम आपने जो बताया है कि बाजुओं में कितनी ताकत है, वो उसी जगह है जहां हमें दिखाना है, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि वो जानता है कि हो सकता है कि हमारी शहादत हो जाए, इस दुनिया में आए हैं और यहीं से वापस घर भी नहीं जा पाएंगे, तो वो एक बहुत बड़ा जज्बा है। और खिलाड़ी भी वो सोच के रहता है कि अब हमें नंबर 1 बनना है और देश का राष्ट्रगान सबको सुनाना है। तो इसके साथ के टीवी के माध्यम से मैं पूरे देश को जरूर बोलना चाहूंगा, प्लेयर और फौजी ये जरूर अपने आप में एक उदाहरण होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ललन सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने का। हम जब भी याद करते तब आप हमारे साथ आ जाते हो। बहुत बहुत शुक्रिया ललन सिंह जी। દર્શક મિત્રો જ્યારે વાત કરી રહ્યા હતા, આપણી સાથે જોડાયેલા હતા લलन સિંહ જી કે જેમને ખૂબ સારી રીતે આપણને માહિતી આપી છે, માહિતગાર કર્યા છે અને એક સ્પિરિટમેન કહેવાય ને કે એક જુસ્સો આપણી અંદર ભરી દીધો છે ને આ જુસ્સો કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતીના માધ્યમથી અમે અમારા દર્શક મિત્રોના વતી પણ જે એથ્લીટ છે, જે લોકો 322 લોકો ત્યાં જઈ રહ્યા છે, એમને અભિનંદન અને શુભેચ્છાઓ પાઠવીએ છીએ કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતીના માધ્યમથી। અમે એવી આશા રાખીએ છીએ કે જે એથ્લીટ્સો જઈ રહ્યા છે ખૂબ સારું પ્રદર્શન કરે, ભારતનું નામ ખૂબ રોશન કરે અને એક નહીં બે નહીં પણ ઘણા બધા ગોલ્ડ મેડલ, સિલ્વર અને બ્રોન્ઝ લઈને આવે, જેથી કરીને આ ભારત દેશનો જે ગર્વ છે અને ગર્વની જે વાતો છે જળવાઈ રહે। દર્શક મિત્રો કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતીના માધ્યમથી અમે હંમેશા પ્રયત્ન કરીએ છીએ આપના સુધી એક એવી વાત, એક એવો વિવાદ લઈને આવવાની કે જેના થકી અમે એક સાચી, સરળ અને સંપૂર્ણ માહિતી આપના સુધી પહોંચાડી શકીએ। તો કાલે મળીશું એક નવા મુદ્દા સાથે, એક નવા વિષય સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહો કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી, સમસ્યા તમારી, ખબર અમારી। નમસ્કાર।